Okay, so this is the further lecture of external force convection, and this is the lecture 8. And in this lecture, we will cover the Reynolds and Colburn analogy. This is very important concept, and the introduction about turbulent flow over the surface and analysis of turbulent flow over the flat plate. Clear? So these three things we will discuss in this lecture. So let us take one by one. First of all, let us consider the Reynolds and Colburn analogy. What is the basic thing of this Reynolds and Colburn analogy? Basically, Reynolds is related to somewhere for the fluid mechanics, and Colburn is also a scientist. And by considering of both analogy, we will develop a relationship between the हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर. क्लियर? तो इन दोनों हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर के बीच का आपको यहाँ पर एक आपको we will consider the this analogy develop a relationship between hydrodynamic boundary layer and thermal boundary layer, and the results hold good for laminar and turbulent flow. That means कि ये जो एनालॉजी हम डेवलप करने जा रहे हैं, इस एनालॉजी का यूज़ हम लैमिनार फ्लो के लिए भी कर सकते हैं और टर्बुलेंट फ्लो के लिए कर सकते हैं. बेसिकली ये एनालॉजी ये बताती है कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर के बीच का रिलेशनशिप. तो नेक्स्ट वन इज दैट इज रेनॉल्ड्स एनालॉजी होल्ड गुड व्हेन प्रांटल नंबर इज इक्वल टू 1. यानी ये एनालॉजी जो है, ये मैंने आपसे कहा कि देयर आर द टू एनालॉजी, रेनॉल्ड्स एनालॉजी एंड कॉलबर्न एनालॉजी. तो बेसिकली पहले हम लोग रेनॉल्ड्स एनालॉजी डिस्कस करेंगे, लेकिन रेनॉल्ड्स एनालॉजी का लिमिटेशन ये है कि प्रांटल नंबर इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर एंड थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस आर इक्वल. लेकिन कॉलबर्न एनालॉजी क्या है? कॉलबर्न एनालॉजी इज इम्प्रूव्ड रिजल्ट ऑफ रेनॉल्ड्स एनालॉजी. आई एम सो सॉरी, इट्स रॉन्गली रिटन दिस analogy, Colburn analogy. I am correcting this. Colburn analogy is the that is Reynolds. Clear? Colburn analogy is the basically the improvement. Clear? This is the improvement of Reynolds analogy. Reynolds analogy को further improve किया गया तो आपका कॉलबर्न एनालॉजी आया. दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रांटल नंबर की वैल्यू 1 के बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. तो फर्दर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या एनालॉजी है ये. सो लेट अस डिस्कस फर्दर. दिस इज द एनालॉजी एंड आई एम कंसीडरिंग स्टेप बाय स्टेप. सो व्हाट इज दिस? सी, इन दिस वन basically I am started with the Reynolds analogy. First I am started with the Reynolds. Clear? Reynolds analogy. So for the Reynolds analogy, the Prandtl number should be equal to 1, which simply means that is Prandtl number is equal to 1. That means nu is equal to alpha. Clear? Nu is equal to alpha. Prandtl number is a ratio of nu by alpha or mu cp by k. ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ. तो mu cp by k should be equal to 1. Clear? So it means mu cp should be equal to k. मैंने क्यों आपसे कहा था कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर के बीच का रिलेशनशिप है? बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखिए, mu is the property of the this fluid and this conductivity is the thermal property. क्लियर? तो एक हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी और थर्मल प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप हम डेवलप करने जा रहे हैं. तो दिस इज द म्यू सीपी बाई के शुड बी इक्वल टू 1. एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स कूलिंग लॉ एट y इज इक्वल टू 0, as y is equal to 0, tau is equal to mu del u over del y. Clear? According to this Newton's viscosity law, this tau is shear stress is equal to mu. This is the dynamic viscosity del u upon del mu. And according to the Fourier law, for the steady state, Q is equal to minus Ka del T over del Y. Clear? This is del T over del Y. I am considering here the case that is cool fluid flow over a hot egg
surface, that is Ts is greater than Tf. Clear? That's why this is a minus Ka del T over del Y. Clear? Del T over del Y. Why I am considering a del T over del Y? Because we are considering the heat transfer in the Y direction. Is that clear? Okay. Now for developing the relationship, I am just using this K is equal to mu Cp. I am just put this K is equal to mu Cp A del T over del Y. Clear? So now using the shear stress relationship, this shear stress is equal to mu del U over del Y. So you can write this mu is equal to tau del Y over del U. So you just put the mu value from this expression to here, you get Q is equal to minus tau del Y over del U. This is Cp A del T over del Y. So this del Y and this del Y will be cancelled out. So you get this one is Q is equal to minus tau Cpa minus tau Cpa del T over del U. क्लियर? तो एक सिंपल सी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज Q del U is equal to minus tau naught. Tau naught मैंने क्यों लिखा? Because we are considering y is equal to 0. So this is the tau naught Cpa and this is del T. So you just integrate this thing and apply the boundary conditions. So when y is equal to 0, the surface temperature is Ts. So if suppose I am considering this is a flat plate, clear? So this is the y is equal to 0 condition. Y is equal to 0 condition. So at this condition, T should be equal to the surface temperature Ts, and this U, the retarded velocity at y is equal to 0 is considered as 0. Clear? At boundary condition, say this is the condition. So at y is equal to del, this is the y is equal to del. So at this condition, T is equal to Tf, the free stream temperature, and the retarded velocity is also equal to the free stream velocity capital U. Clear? Because PR is equal to 1, so HBL, and because this del T should be equal to del. Clear? Del T should be equal to del. So this is the 0 to U del U, and this apply the boundary condition. When T is equal to Ts, U is equal to 0. When T is equal to Tf, U is equal to capital U. So you just use this thing. So this one is Q capital U. It's not U like this. This is Q capital U is equal to minus tau naught Cpa Tf minus Ts. So small Tf. So this is the Tf minus Ts. So what comes? Q is equal to T naught Cpa. We are considered Ts is greater than Tf. So take the minus sign inside. So this is the Ts minus Tf upon U. And also we know this, the Newton's cooling law, Q is equal to the local convective heat transfer coefficient Hxa Ts minus Tf. So if you observe this expression and this expression, these are the two expressions. So in these expressions, this side is equal. So you can equate, that is Hxa Ts minus Tf should be equal to T naught Cpa Ts minus Tf upon U. So this Ts minus Tf and this Ts minus Tf will be cancelled out. Area of cross section and area of cross section will be cancelled out, because here also the area of cross section is similar as the surface area. So both things will be cancelled out. So this one is Hx U upon Cp. This should be equal to the tau naught. This is the shear stress. And जो आपने पहले भी किया है स्किन फ्रिक्शन के लिए, आपने जो डिराइव किया था एक्सप्रेशन, दिस इज द Cfx by 2. आपको याद होगा ये 0.664 था. क्लियर? तो 0.664 था, इसको मैंने 0.664 से क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया. तो Cfx डिवाइडेड बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0.332 अपॉन रेनॉल्ड नंबर x. ये आपको याद होगा, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से थी. दिस इज Cfx लोकल स्किन फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू, दिस इज 0.664 डिवाइडेड बाय, आप अपने नोट्स पुराने देख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ रेनॉल्ड नंबर x. ये एक्सप्रेशन आपने पहले प्रूव की है. तो मैंने इसमें Cfx बाई 2 कर दिया, तो दिस इज 0.664, तो दिस इज 0.332. पर्पसफुली किया है, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ आपको. एंड ऑल्सो वी नो दिस, द शेयर स्ट्रेस शुड बी इक्वल टू द
स्किन फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डायनेमिक हेड, दिस इज द डायनेमिक हेड। क्लियर? स्किन फ्रिक्शन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन डायनेमिक हेड, ये मैं पहले भी आपको कर चुका हूँ स्किन फ्रिक्शन निकालते समय, याद होगा आपको। सो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सी एफ एक्स इंटू हाफ रो यू स्क्वायर। क्लियर? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, सी एफ एक्स बाई 2 की एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 0.332 रो यू स्क्वायर अपॉन रेनॉल्ड नंबर एक्स, ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। क्यों मैंने लिखा है इसका पर्पस बताता हूँ आगे, इसको लिखने के पीछे का पर्पस क्या है। सो लेट्स मूव इन दिस वन। सो नाउ दिस वन इज एच एक्स यू अपॉन सी पी इज इक्वल टू टाउ नॉट था, टाउ नॉट की मैंने वैल्यू निकाली 0.332 रो यू स्क्वायर अपॉन रेनॉल्ड नंबर एक्स। क्लियर? अब यहां से देखिए एच एक्स यू अपॉन सी पी, दिस इज सी एफ एक्स अपॉन हाफ रो यू स्क्वायर, ये चीज आपने पहले लिखी हुई है। तो एच एक्स अपॉन रो यू सी पी, देखिए कुछ कैंसिल होगा इसमें, दिस इज द यू एंड दिस यू, तो एच एक्स अपॉन रो यू सी पी, रो यू इधर ले आए, रो यू सी पी इज इक्वल टू दिस इज सी एफ एक्स बाई 2। ये कैसे लिखा हमने, ये चीज कैसे आई, सी एफ एक्स बाई 2 कैसे आ गया, बिकॉज आपने शियर स्ट्रेस एच एक्स इज इक्वल टू टाउ नॉट इज इक्वल टू एच एक्स यू अपॉन सी पी था, दिस इज सी एफ एक्स इंटू हाफ रो यू स्क्वायर, ये अभी आपने लिखा था। यहाँ पर सी एफ एक्स बाई 2 की वैल्यू आपने कितनी लिखी, 0.332 रो यू स्क्वायर, सॉरी 0.332 अपॉन अंडर रूट रेनॉल्ड नंबर एक्स, ये चीज़ तो आपने लिखी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू सिंपल यू एक्स अपॉन म्यू। क्लियर? यू एक्स अपॉन म्यू, रेनॉल्ड नंबर एक्स की भी वैल्यू आप यहाँ पर उठा के पुट कर दीजिए, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगी, एच एक्स रो यू सी पी इज इक्वल टू सी एफ एक्स बाई 2। क्यों? क्योंकि सी एफ एक्स बाई 2 क्यों आया, क्योंकि 0.332 अपॉन रेनॉल्ड नंबर एक्स बचता है, क्योंकि अगर आप रो यू इधर ले जाओगे तो ये सी एफ एक्स बाई 2 है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इन सबको डायमेंशनलेस क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि इधर तो ये चीज़ देखिए ये डायमेंशनलेस है, सी एफ एक्स बाई 2, तो ये भी डायमेंशनलेस ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल लॉ, कि अगर आपका आर एच एस साइड डायमेंशनलेस है तो एल एच एस साइड भी डायमेंशनलेस ही होगा, बिकॉज सी एफ एक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। तो डायमेंशनलेस बनाने के लिए हमने क्या किया, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई के, तो अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया एक्स बाई के का, तो एक्स बाई के को मैं डिवाइड भी करूँगा, तो एक्स बाई के को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। रो यू था तो एक एक्स जो मैंने डिवाइड किया था उसका आ गया, और म्यू का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो आप देखिए ये 3 क्वांटिटीज बनती हैं, देयर आर द 3 क्वांटिटीज, और ये तीनों क्वांटिटीज आपको नोन क्वांटिटीज हैं और तीनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं। एच एक्स एक्स अपॉन के इज द नसेल्ट नंबर एट एनी एक्स, रो यू एक्स अपॉन म्यू इज this is rho times also. So rho u x upon mu is the Reynolds number at that x, and mu Cp by k is a Prandtl number. This should be equal to the Cfx by 2, and the ratio of Nusselt number to the Prandtl number and Reynolds number is known as the Staten number. This is another dimensionless number which is known as the Staten number. So Staten number and Staten number is equal to Cfx by 2, but this equation is holds good only and only for Prandtl number is equal to 1. Clear? So basically what is the Staten number? Staten number is the ratio of the dimensionless numbers, and the dimensionless number is basically, अगर आप देखोगे तो what is the dimensionless number? That is the Nusselt number to the Reynolds number and Prandtl number. Is that clear? So here is Staten number. This analogy is holds good only for Prandtl number is equal to 1, but this thing happens always. This can be, this is not a correct statement. तो करेक्ट स्टेटमेंट करने के लिए क्या किया, अब यहाँ से आपका कॉलबर्न एनालॉजी स्टार्ट होता है, और कॉलबर्न ने ये कहा कि जब हमको ये पता है कि प्रांटल नंबर इज ग्रेटर देन 0.6 एंड लेस देन 10, इस पर्टिकुलर रेंज के लिए प्रांटल नंबर की वैल्यू जो इस पर्टिकुलर रेंज के लिए जो उसके ऊपर थर्मल बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होता है वो मैक्सिमम केसेस को कवर कर लेता है। तो क्यों ना हम लोग प्रांटल नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0.6 और लेस देन 10 के लिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई करें। और कैसे मॉडिफाई किया गया, उसने जो आपका वॉन कैरमैन का रिजल्ट था थर्मल के लिए, वो रिजल्ट यूज़ किया, क्योंकि वो रिजल्ट होल्ड गुड करता है प्रांटल नंबर
value is greater than 0.6 but less than 10 के लिए holds good. So the Nusselt number at any x is 0.332 Reynolds number x to the power 1 by 2 and Prandtl number to the power 1 by 3. But this is applicable for laminar flow. ये उसका limitation था. तो आपको इसमें कैसे इस फर्दर रिजल्ट को यूज़ करना है, ये रिजल्ट आपका किसके लिए यूज़ है, लैमिनार के लिए भी, टर्बुलेंट के लिए. अब देखिए यहाँ पर जो लिमिटेशन थी कोलबर्ग जो वॉन कैरमैन की लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन ये थी कि ये रिजल्ट केवल लैमिनार के लिए होता है. कोलबर्ग ने कहा कि क्यों ना इस रिजल्ट को और मॉडिफाई किया जाए, और उस मॉडिफिकेशन में उसने देखिए क्या क्या चीज़ें चेंज की. CF(x/2) अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, CF(x/2) इज 0.332 अपॉन रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1 by 2. ये अपने वॉन कैरमैन का ही रिजल्ट है ये. तो देखिए कैसे आगे किया. 0.332 की जगह पर हम क्या लिखना चाह रहे हैं, 0.332 की जगह पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दैट इज CF(x/2) मल्टीप्लाइड बाई रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1 by 2. तो नसेल्ट नंबर x is equal to CF(x/2) into Reynolds number x to the power 1 by 2 into Reynolds number x to the power 1 by 2 into Prandtl number to the power 1 by 2. तो Reynolds number x to the power 1 by 2 into Reynolds number x to the power 1 by 2 is Reynolds number x. क्लियर, ये बात समझ में आ गई. CF(x/2) and Prandtl number to the power 1 by 3. इज दैट क्लियर. अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए, इस एक्सप्रेशन में this is the dimensionless number, this is the dimensionless number, this is the dimensionless number, and this will also a dimensionless number. So this particular equation is holds good for laminar flow and turbulent flow both. ये चीज़ ध्यान रखिएगा. यहाँ पर चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन आता है, तो इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से आप यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं कंसीडर करेंगे कि नहीं ये लैमिनार के लिए. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर भी अभी 0.5 है, इसको भी मैं रिमूव करके आपको दिखा रहा हूँ कि 0.5 भी मैं रिमूव कर रहा हूँ. तो अब वो 0.5 भी कैसे रिमूव, मल्टीप्लायर जो है वो कैसे रिमूव किया जाएगा. देखिए CF(x/2) इज इक्वल टू नसेल्ट नंबर टू द पावर नसेल्ट नंबर x डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर x टू द प्रांटल नंबर टू द पावर 1 by 2. इज दैट क्लियर. CF(x/2) ये चीज़ समझ में आ गई आपको. अगर मैं यहाँ पर प्रांटल नंबर 2 की पावर 2 by 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये नसेल्ट नंबर x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x इंटू प्रांटल नंबर x प्रांटल नंबर हो जाएगा, इज इक्वल टू CF(x/2) हो जाएगा. तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या है, स्टैटन नंबर. तो प्रांटल नंबर टू द पावर 2 by 3 मल्टीप्लाइड बाई स्टैटन नंबर टू द पावर x, स्टैटन नंबर x एट एनी x, this should be equal to the CF(x/2). and this analogy is holds good for laminar flow and turbulent flow, but this is applicable only and only for Prandtl number values greater than 0.6 but less than 10. And this is very important analogy for evaluating the thermal boundary layer, convective heat transfer coefficient for what, for turbulent flow. Clear. turbulent flow के calculation के लिए ये important data है. चलिए अब आगे देखते हैं. अब देखिए turbulent flow ओवर द सरफेस के लिए क्या चीज़ लिखी है. turbulent flow आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में. दिस इज द नॉन लीनियर फ्लो, मोस्ट रैंडम नेचर ऑफ द पार्टिकल्स इन द turbulent flow. दैट्स वाई अभी तक इसकी एग्जैक्ट एनालिसिस पॉसिबल नहीं हो पाई है कि इसकी कोई एग्जैक्ट एनालिसिस कर पाए. क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स किसी न किसी हर एक डायरेक्शंस में रैंडमली मूव करते हैं. एक्स डायरेक्शन में कुछ समय चल रहा है, वही फिर कुछ समय चेंज होकर वाई डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जेड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. दैट मीन्स इट्स नॉट लीनियर. दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एग्जैक्ट एनालिसिस फॉर द टर्बुलेंट फ्लो. तो हम लोग कुछ यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशंस एनालिसिस करते हैं, और ये जो मैंने आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाया है, दिस इज द ट्रेस, दिस इज द सिमुलेटेड ट्रेस. एक सिमुलेशन से एक ट्रेस पार्टिकल का किया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑल्सो. क्लियर. एट के एनी एक्स. तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कुछ मैंने इसमें सारे फीचर्स लिखे हैं. द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज चेंज रैंडमली विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. In turbulent flow, due to the random and rapid fluctuation of swirling regions of fluid called eddies. क्यों मैंने ऐसे कहा? सपोज करो एक फ्लूइड ये जो है वो एक फ्लैट प्लेट के ऊपर इस तरह से फ्लो कर रहा है. तो लैमिनार में तो ये हर जगह पर ये इस तरह का लीनियर मूवमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर कहीं पर ये स्विल होगा, कहीं पर ये एडीज होगा, कहीं पर ये इस तरह से मूव कर रहा होगा, किसी में इस तरह से मूव कर रहा होगा. दैट मीन्स इट्स अ वेरी रैंडम. इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है इन टर्बुलेंट फ्लो ड्यू टू द रैंडम एंड रैपिड फ्लक्चुएशन ऑफ स्विलिंग रीजन्स ऑफ फ्लूइड कॉल्ड एडीज थ्रू आउट द फ्लो. क्लियर. इनको एडीज बोला जाता है जो जिसमें ये रैंडमनेस आती है. ड्यू टू दिस स्विलिंग एंड एडीज
transport mass, momentum and energy to other regions of the flow which more rapidly than molecular diffusion. जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रहा है उससे भी तेज इसमें एनर्जी का, मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन होता है ड्यू टू दिस एडीज करंट. So it enhance the mass, momentum and heat transfer as compared to ordinary linear flow. अब एक मजे की बात यह है कि आपको टर्बुलेंट फ्लो में कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है और एक फ्लो आपका लीनियर हो रहा है, तो लेमिनार हो रहा है, तो बताइए किसमें एनर्जी का, किसमें हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगी, किसमें मोमेंटम ट्रांसफर ज़्यादा होगा. क्वाइट ऑब्वियस कि आपका जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर वो ज़्यादा होगा. वाई? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जो मैंने यहाँ पर लिखा, ड्यू टू दिस swirling eddies ट्रांसपोर्टेशन मास, मोमेंट एंड एनर्जी टू अदर रीजन्स ऑफ फ्लो मच मोर रैपिड एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन. जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन से एनर्जी का ट्रांसमिशन होना चाहिए वो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन अब यहाँ पर जो एडीज की वजह से मास का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, मोमेंटम का ट्रांसमिशन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो डिफ्यूजन के रेट से कई गुना ज़्यादा होता है. इसलिए लीनियर लेमिनार के केस में यही चीज़, जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है, जो आपका मोमेंटम का ट्रांसमिशन है, जो आपका मास का ट्रांसमिशन है, ये सारी चीज़ें आपका डिफ्यूज़न की वजह से होती हैं और यहाँ पर एडीज़ की वजह से होती हैं. और एडीज़ का रेट जो होता है डिफ्यूज़न के रेट से फार बेटर होता है, या मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा होता है. इसलिए आपका लेमिनार का टर्बुलेंट का केस जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करता है और ज़्यादा मोमेंट ट्रांसफ़र करता है. लेकिन चूँकि आपका एनालिसिस बहुत इरेगुलर है, रैंडम नहीं है, तो आपका नॉन लीनियर है, तो यहाँ पर एनालिसिस पॉसिबल नहीं है. लेकिन टर्बुलेंट फ्लो का कैलकुलेशन करके हम ये कहेंगे कि इससे ज़्यादा ही मिलेगा. इज दैट क्लियर? सो दिस एनालिसिस इज लुक लाइक दिस. सो लेट अस मूव फर्दर. सो दिस वन इज टर्बुलेंट फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट. और इस एनालिसिस को करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है और ये डायग्राम एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है. यहाँ पर जो कर्वेचर है, इट्स नॉट अ पैराबोलिक, मैंने एग्जैक्ट पैराबोला बनाने का यहाँ पर एक्चुअली वो बना हुआ है. ये एक्चुअली में बहुत थिन होता है, इट्स लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है. ये क्लियर? ये ऐसा बनता है. क्लियर? इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है. कुछ वेलोसिटीज़ के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, बट इट्स नॉट अ पैराबोलिक इन नेचर, क्योंकि जो पैराबोला होता है वो कुछ ऐसा होता है. क्लियर? उसमें हर एक पोजीशन पर, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के बाद आप देखिए कि वेलोसिटी अप्रॉक्सीमेट आपका, इट्स नॉट अ वेरी वेरिएबल टाइप. और जो भी वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं वो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है. दिस इज द यू एवरेज. वाई यू एवरेज? क्योंकि आप देख रहे थे अभी लास्ट जो मैंने डायग्राम बनाया था, अगर आपको देखा हो ध्यान से, तो उसमें आपने देखा कि कुछ फ्लैक्चुएशन इस तरह से था, लाइक अ ईसीजी. क्लियर? लाइक अ ईसीजी स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से फ्लैक्चुएशन था. तो यहाँ पर एक एवरेज डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है और ये एवरेज डिस्टेंस क्या है? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी. इसलिए टर्बुलेंट में हमेशा आप एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, तो एक्चुअल में ये एवरेज वेलोसिटी है. तो आप यहाँ पर देखें, दिस फिगर शोज द अप्रॉक्सीमेट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन ओवर द सॉलिड सरफेस फॉर टर्बुलेंट फ्लो एंड दिस बाउंड्री लेयर इज थिकर दैन द लेमिनार बाउंड्री लेयर. रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ जाता है, इसलिए आपका जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर की, चाहे वो थर्मल बाउंड्री लेयर की हो, चाहे वो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की हो, दोनों के केस में ज़्यादा होती है. टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर and this boundary layer is thicker than the laminar boundary layer due to the high drag force, because in turbulent flow velocity is high. Here velocity profile is drawn by approximation in which the laminar sublayer, आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो विसिनिटी लेयर है वो स्टिक होगी और उसके ऊपर जो लेयर होगी वो लैमिनार लेयर होगी और उसके ऊपर एक बफर लेयर होगी. बफर लेयर एक ट्रांसमिशन लेयर है जिसके ऊपर पूरी तरह से वो कन्वर्ट हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो में, लेकिन यहाँ पर ये एग्जैक्टली लैमिनार रहता है. इसलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पैराबोलिक इन नेचर है, यहाँ तक पैराबोलिक इन नेचर है. आफ्टर दैट यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने लिखा हियर वेलोसिटी प्रोफाइल इज ड्रॉन बाय अप्रॉक्सीमेशन इन विच द लैमिनार सब लेयर एंड बफर लेयर फॉर्म्ड ओवर द सरफेस एट विच द मॉलिक्यूल फील द ऑर्डिनरी एंड linear velocity, but after buffer layer again fluctuation eddies velocity of molecules, but the sake of analysis here we assume the molecule feel average velocity so that the profile is expressed as this is the profile, this is the nth profile of turbulent flow over the surface. Small u upon capital U is a function of y upon del to the power n. और
एक अप्रॉक्सीमेशन में n की वैल्यू अगर 1.7 है और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर 7 टू 10 टू द पावर 7 के बीच में है। अब आप कहेंगे कि सर 10 टू द पावर 7 से ज़्यादा में क्या होगा? डेफिनेटली n की वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन अगर रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू 10 टू द पावर 7 से ज़्यादा है और 10 टू द पावर 7 से कम, ये मैं ओवर द सरफेस के लिए बता रहा हूँ, इनसाइड सरफेस के लिए ये कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 1.7 एक अप्रॉक्सीमेशन में कंसीडर कर सकते हैं। अब अगर मैं उस अप्रॉक्सीमेशन को कंसीडर करूँ स्मॉल यू अपान कैपिटल यू, सो दिस वेलोसिटी प्रोफाइल इज लुक लाइक दिस इज स्मॉल यू अपान कैपिटल यू इज इक्वल टू y by del to the power 1/7. This called the 1/7 power law for the turbulent flow over the flat plate, and this equation is holds good only for Reynolds number की value 5 into 10 to the power 7 to 10 to the power 7. अब इसके बाद इसमें जो एक रिजल्ट मिला वो रिजल्ट ब्लेसियस ने दिया, और रिजल्ट एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट है। अगर रेनॉल्ड की रेंज 5 इंटू 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर 7 के बीच में है, तो शेयर स्ट्रेस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.0225 रो यू स्क्वायर इन ब्रैकेट म्यू अपान रो यू डेल टू द पावर 1/4। क्लियर? ये जितने भी फार्मूले अब आपको यहाँ पर दिखेंगे, these are the experimented formula. Clear? These are the experimented formula. ये by experiment ये फार्मूला डेवलप किए गए हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं है। क्लियर? तो शेयर स्ट्रेस टाउ नॉट इज इक्वल टू 0.0225 रो यू स्क्वायर म्यू रो यू डेल टू द पावर 1/4। क्लियर? तो ये एक्सप्रेशन डेवलप की है, और देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या है आगे, कैसे इसको यूज़ किया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये एक्सप्रेशन कैसे यूज़ की जाएगी देखिए। सी, अब मैं यहाँ पर आपको हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, स्किन फ्रिक्शन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, लोकल और एवरेज, ये सारी चीज़ें मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको याद होगा वॉन कैरमैन की जो थ्योरी थी, मोमेंटम थ्योरी थी, उसका जो रिजल्ट था, मैंने आपसे कहा था कि वो रिजल्ट आपका टर्बुलेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो वहाँ से टाउ नॉट इज इक्वल टू रो यू स्क्वायर डेल थीटा ओवर डेल एक्स, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमने वॉन कैरमैन से इवेल्युएट किया था। टाउ नॉट इज इक्वल टू रो यू स्क्वायर डेल थीटा अपॉन एक्स, थीटा यहाँ पर मोमेंटम थिकनेस है, तो उसको मैंने लिख दिया रो यू स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स 0 टू डेल स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू इनटू dy। क्लियर? इतनी इक्वेशन मैंने लिख दी। अब मैं LHS साइड को कंसीडर कर रहा हूँ। पहले LHS साइड में अगर देखो तो रो यू स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू, अभी मैंने देखा रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर 7 के बीच में है, तो ये y बाई डेल टू द पावर 1/7 को वैलिड करता है। तो मैं स्मॉल यू अपॉन कैपिटल यू को y बाई डेल टू द पावर 1/7 माइनस y बाई डेल टू द पावर 1/7, यानी मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, दैट्स वाई दिस इज 2/7 इंटू dy। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप और लिमिट लगाइए, तो क्या आएगा रो यू स्क्वायर डेल ओवर डेल एक्स 7/8 y टू द पावर 8/7 इंटू डेल टू द पावर 4/7। क्लियर? माइनस 7/9 y टू द पावर 9/7 अपॉन डेल टू द पावर 2/7। ये सिंपल इंटीग्रेशन है। और टाउ नॉट इज इक्वल टू क्या आया, इसको अगर सॉल्व करोगे 0 टू डेल लिमिट लगाओगे तो 0 लगाने से y 0 हो जाएगा, केवल डेल की लिमिट लगेगी, और इस डेल से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7/72 डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल, यही तो मिलेगा। और टाउ नॉट आपको ब्लेसियस ने क्या सजेस्ट किया था 0.0225 रो यू स्क्वायर म्यू अपॉन रो यू डेल टू द पावर 1/4, दिस शुड बी इक्वल टू रो यू स्क्वायर इंटू 7/72 डेल ओवर डेल एक्स इंटू डेल, यही तो आएगा। क्लियर? तो यहाँ से देखिए रो यू स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, जितने भी ये है न्यूमेरिकल टर्म है इसको साथ में कर लीजिए, 0.0225 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 7 इन ब्रैकेट दिस इज म्यू रो यू टू द पावर 1/4 इंटू डेल एक्स को मैं इधर ले आया 0 टू एक्स डेल एक्स, इस डेल को यानी डेल टू द पावर 1/4 को मैं इधर ले गया क्योंकि यहाँ से डी डेल है, और 0 टू डेल मैंने लिमिट लगा दी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 डेल इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू x डेल इज इक्वल टू डेल x। क्लियर? ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया तो ये जो मल्टीप्लायर आया वो कितना है 0.2314, एंड दिस वन इज म्यू अपॉन रो यू टू द पावर 1/4 एंड दिस वन इज x, दिस शुड बी इक्वल टू 4/5 डेल टू द पावर 5/4। क्लियर? तो यहाँ से आप डेल की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट इज डेल, डेल इज इक्वल टू 0.2314 टू द पावर 4/5। क्लियर?
ये 4/5 भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए सारा न्यूमेरिकल टर्म, और ये डेल, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल इज इक्वल टू 0.37x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/2। लैमिनार के लिए ये चीज़ क्या आई थी, डेल इज इक्वल टू कितना आया था आपका, दिस इज 4.64x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/2। ये आया था किसके लिए, ये आया था आपका लैमिनार के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लायर भी बदल रहा है और ये पावर भी बदल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर की थिकनेस है किसके केस में, टर्बुलेंट के केस में, वो लैमिनार से कई गुना ज़्यादा है। क्लियर, तो ये हो गया हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थिकनेस का कैलकुलेशन। और अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्किन फ्रिक्शन कैलकुलेट किया गया है, स्किन फ्रिक्शन। सो स्किन फ्रिक्शन CFX इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन द डायनेमिक हेड। शियर स्ट्रेस की वैल्यू ब्लेसियस का जो मैंने रूल लिखा था, उस ब्लेसियस के रूल से 0.0225 रो यू स्क्वायर म्यू अपॉन रो यू डेल टू द पावर 1/4, ये वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पर पुट कर दी। डेल की वैल्यू जो अभी मैंने कैलकुलेट की है 0.37x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/5, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर ली। और सिंपल सा अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, आप अपनी कॉपी पे करके तुरंत देखिए इसको। 0.0225 इंटू 2 in bracket this is mu रेनॉल्ड नंबर x to the power 1/5 upon rho u multiplied by 0.37x, यही जो अभी मैंने वैल्यू कैलकुलेट की। और इसको आप सॉल्व करिए, तो जितना भी न्यूमेरिकल टर्म है उसको अलग कर लीजिए, और जितना भी आपका अलजेब्रिक समीशन है उसको आप रेनॉल्ड नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये बनता है रेनॉल्ड नंबर x to the power 1/5। तो लोकल स्किन फ्रिक्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ लोकल स्किन फ्रिक्शन, दिस वैल्यू इज 0.0576 रेनॉल्ड नंबर x to the power 1/5। Clear, the average skin friction value and average skin friction value कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये मैंने कैलकुलेट करने आपको बताया है, 0 to L CFX dx upon L। अगर आप ये करके देखेंगे तो चूंकि रेनॉल्ड नंबर में क्या होता है, दिस इज रो यू अपॉन म्यू, ये कांस्टेंट होगा x to the power 1/5, यानी x to the power -1/5 को आपको इंटीग्रेट करना है और 0 to L लिमिट लगानी है। तो वो मैंने सॉल्व करके देखा है, वो आता है कितना, दिस इज द 5/4 ऑफ CFL। क्लियर, दिस कम्स 5/4 टाइम्स ऑफ CFL, या इसको मैं बोलूँ CF बार इज इक्वल टू 0.072 अपॉन CFL टू द पावर 1/5। ये सारे एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए। ये एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, बहुत आसान है, इसको करके आप जब देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ थर्मल की, कि आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो थर्मल बाउंड्री लेयर ओवर फ्लैट प्लेट फॉर्मेशन एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे पहले किया, लेकिन इसका कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए हमको एनालॉजी यूज़ करनी है, और वो कॉलबर्न एनालॉजी, क्योंकि प्रांटल नंबर की वैल्यू ग्रेटर दैन 0.6 एंड लेस दैन 10 होना चाहिए, लेस दैन 10 होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0.6 बट लेस दैन 10 के लिए ये इक्वेशन होल्ड्स गुड है। सैटर्न नंबर x प्रांटल नंबर टू द पावर 2/3 शुड बी इक्वल टू CFX/2। सो अभी हमने CFX का डेरिवेशन किया 0.0576 अपॉन रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/5, और ये किसके लिए है, ये रेनॉल्ड नंबर 5 × 10 टू द पावर 5 थ्रू 10 टू द पावर 7 के लिए होल्ड्स गुड है। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये CFX की वैल्यू अगर मैं इस एक्सप्रेशन में उठा के पुट करूँ तो क्या आएगा, देखिए स्टैटन नंबर की वैल्यू क्या हो गई, नसेल्ट नंबर x अपॉन रेनॉल्ड नंबर x टू द प्रांटल नंबर इंटू प्रांटल नंबर टू द पावर 2/3, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0.0576 अपॉन 2 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज CFX/2। तो दिस इज द CFX वैल्यू इज 0.076, तो दिस इज डिवाइडेड बाई 2 रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 1/5। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो नसेल्ट नंबर x प्रांटल नंबर टू द 2/3 एंड दिस वन, सो दिस इज द प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3 and this is the Prandtl number to the power 1/3, and this is the Reynolds number x divided by Reynolds number x to the power 1/5, तो this is 1 minus 1/5, कितना होगा 1 minus 1/5, कितना हो जाएगा, this is the 5 minus 1, this is 4/5, clear, 4/5, तो Reynolds number x to the power 4/5 आ गया यहाँ पर। तो नसेल्ट नंबर की वैल्यू क्या आई, नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.0576, ये चीज, ये नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.0576 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 0.0288, प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3, रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 4/5। यही चीज आपका लैमिनार के लिए नसेल्ट नंबर कितना आ रहा था 0.664, प्रांटल नंबर टू द पावर 1/3
एंड रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 1/2 आ रहा था, यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर टू द पावर 4/5 है। तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लायर तो कम हुआ लेकिन आपका रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बहुत बढ़ गई, तो उसकी वजह से नसेल्ट नंबर बहुत बढ़ जाएगा। और नसेल्ट नंबर बढ़ने का मतलब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का बढ़ना, और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का बढ़ना मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ना। तो यहाँ जो चीज़ मैंने फिजिकली आपको बताई थी कि फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि थर्मल बाउंड्री लेयर में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्यों ज़्यादा होता है, वो आप इस एक्सप्रेशन से भी प्रूफ करके बता सकते हैं। नसेल्ट नंबर x इज इक्वल टू एच एक्स इंटू एक्स बाई के, तो एच एक्स इज इक्वल टू 0.0228 k बाई एक्स फ्रंटल नंबर टू द पावर 1/3 एंड रेनॉल्ड नंबर x टू द पावर 4/5। अब इसकी एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, h बार इज इक्वल टू 0 टू l एच एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एल। ये 0 टू l के बीच में आप लिमिट लगा दीजिए, अगर लिमिट लगा के आप सॉल्व करेंगे तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो दिस कम्स 5/4 टाइम्स ऑफ एच एल। क्लियर। तो आप यहाँ पर इसको चाहे तो नसेल्ट नंबर के लिए भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली 5/4 NuL मिलेगा, और h बार की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5/4 टाइम्स 0.0288, सो दिस कम्स 0.036 k by l, Prandtl number to the power 1/3, Reynolds number L to the power 4/5, and also the Nusselt number 5/4 multiplied by 0.0288, so this comes 0.036 Prandtl number to the power 1/3 and Reynolds number to the power 4/5। क्लियर। तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक तो थर्मल का जितना भी इसमें है वो सारा, यानी नसेल्ट नंबर की वैल्यू टर्बुलेंट के लिए कितनी होती है, लैमिनार के लिए कितनी होती है, और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये एक्सप्रेशंस किन प्रांटल नंबर के लिए और किन रेनॉल्ड नंबर के लिए इक्वेशंस आती हैं। अदरवाइज अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10 टू द पावर 7 से ज़्यादा है तो आप ये इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते, या प्रांटल नंबर की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो आप ये एक्सप्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए आपको इक्वेशंस यानी फार्मूले क्वेश्चन में दिए जाएंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से स्किन फ्रिक्शन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे अगर आपको प्रूफ करने के लिए आएगा तो। इज दैट क्लियर। तो this is about concept of thermal boundary layer. So definitely we will meet in